Hi everyone, this is Sarit Kumar. Today I am going to discuss a chapter heights and distance, that is also known as application of trigonometric ratio. Before starting my class, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and please press bell icon to get new notification for new videos. So let us see. In this chapter we have to solve the problems related to height and distances. Before that, we have to explain some words. You can see on the screen. आप screen पर देख सकते हो जैसे angle of elevation. So the angle of elevation, it is the angle of elevation, the angle to which an observer would have to raise their line of sight above a horizontal to see an object. मतलब it is the angle between, you can see this line is known as sight line or it is also known as line of sight. So it is the line when an observer, you can see here it is an observer, you can see similar figure here. This is an observer. So the line made by the eye of the observer to the object, this line is known as line of sight. Angle of elevation, this is known as horizontal level. Or horizontal line. So the angle between horizontal line or horizontal level to the line of sight is known as angle of elevation. अगर सीधे शब्दों में कहा जाए, अगर आपको आँख को ऊपर की तरफ देखना हो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, देन उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है. सेकेंड केस, जैसे इसका एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं. यू कैन सी हियर द ऑब्जेक्ट इज देयर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of the tree is this. So this is known as angle of elevation. Similarly, you can see another example. So here you can see this is the horizontal level. This is the line of sight. If object is here. Similarly, here you can see a man is standing in front of a tower. There is another man, or you can see object at the top of the tower. This is line of sight, this is horizontal, and here it is angle of elevation. Angle of elevation, this angle is known as angle of elevation. जब आपको आई को ऊपर करना पड़े, in that case angle of elevation form होता है. So now the second word is related, very important, angle of depression. So angle of depression, it is the angle that an observer would have to lower their line of sight below a horizontal line to see an object. मतलब ये देखो, आप ऑब्जर्वर यहाँ पर है और वो किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देख रहा है, मतलब आपको आँख को जब नीचे करना पड़ता है तो उस केस में जो एंगल फॉर्म होता है, दैट इज नॉन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन. दिस इज लाइन ऑफ साइट. So you can see horizontal line. So in this case it will be horizontal line or horizontal level. So angle between horizontal line and the line of sight is known as angle of depression if the line of sight lies below the horizontal line. The horizontal line से नीचे है और एंगल ऑफ एलिवेशन में horizontal line से ऊपर होता है line of sight. So इस पे एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन का. जैसे यहाँ पर suppose an object is here at V point. This is a lighthouse है ना, on the bank of the sea, you can see. So यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो सी में, वाटर में है. तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमको आंख नीचे करके देखना पड़ रहा है, तो डेट्स वाई हियर जो एंगल फॉर्म हो रहा है, सपोज दिस एंगल x डिग्री दिया हुआ है. सो दिस इज नॉन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन. दिस इज हॉरिजेंटल लेवल, हॉरिजेंटल लाइन, और दिस इज लाइन ऑफ साइट. So this is angle of depression. Similarly you can see एक बिल्डिंग है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है,
वो he is looking at another you can see object which is at the ground level. So here जो angle form हो रहा that is angle of depression. This is horizontal line or horizontal level you can say, and this is line of sight. So now let us see. Now you can see this figure. ये जो है एक कॉम्बिनेशन एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पर दोनों, जैसे कि ऑब्जर्वर है यहाँ पर, यू कैन सी हेयर ऑब्जर्वर, ही इज ऑब्जर्विंग एन ऑब्जेक्ट जस्ट अबव, है ना। इन दैट केस आप देखो ऑब्जेक्ट यहाँ अपर साइड में है, अप साइड में, तो यू कैन सी हेयर जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज नॉन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। सो हेयर दिस इज लाइन ऑफ साइट, साइट लाइन जिसको आप कर सकते हो, एंड हेयर दिस इज हॉरिजेंटल लेवल और हॉरिजेंटल लाइन आप कर सकते हो, दिस इज हॉरिजेंटल लाइन और लेवल, एंड दिस इज लाइन ऑफ साइट हेयर, और ये लाइन ऑफ साइट है और ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पर ऐसा सिचुएशन हो सकता है, जैसे आप देखो एक ऑब्जेक्ट यहाँ ऑब्जर्वर है यहाँ पर लाइट हाउस के ऊपर, तो अगर सी में एक सपोज सी है, सी पे तो उसको अगर देख रहा है वो, तो वो उस केस में ये जो एंगल होगा वाई, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब नीचे की तरफ देखना पड़ रहा हमें। और यहाँ पर जो एंगल है, सपोज यहाँ से अगर वो किसी एरोप्लेन को देख रहा है, देन इन दैट केस ये जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए ये जो एंगल एक्स होगा दैट विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन। सो ये था एग्जांपल्स एंड डिफिनेशंस ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, ये कॉम्बिनेशन था। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू ए फिगर। अब आपको यहाँ पर देखो कि आपको यहाँ रिकॉग्नाइज करना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन 1 क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है या डिप्रेशन, है ना, एंगल ऑफ 2 क्या है, एंगल 3 क्या है और एंगल 4 क्या है। डिस्क्राइब ईच एंगल एज इट रिलेट्स टू द सिचुएशन बिलो। जैसे यहाँ पर एंगल 2 है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये माउंटेन और हिल है, इसका टॉप हो गया ये, तो ऑब्जर्वर ये हो गया आपका, ये हो गया ऑब्जर्वर, तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट, दिस इज हॉरिजेंटल लाइन 1। ऑब्वियसली ये जो एंगल होगा, तो यहाँ जो एंगल ये फॉर्म होगा दिस विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो एंगल होगा ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखूंगा एंगल ए ओ डी, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल 2 जो होगा दिस एंगल, ये हो जाएगा आपका इस पॉइंट के लिए, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर दिख रहा है, तो दैट मीन्स ये जो एंगल 2 हो जाएगा दैट विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन, ए ओ ई शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ मैंने, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो 3 हो जाएगा, तो आप देखो ये हॉरिजेंटल लेवल है और ये ऑब्जर्वर, ये नीचे ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ उसको देख रहा है, तो एंगल 3 जो होगा दैट विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि आई को नीचे करना पड़ा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एक फॉर एग्जांपल यहाँ पर, सपोज यहाँ हाउस के पास कोई ऑब्जर्वर है एंड ही इज लुकिंग दिस मैन, है ना, यहाँ पर ये, तो इसके लिए ये जो एंगल 4 होगा दैट विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन। सो यू कैन सी ये फिगर आपको, ये जैसे ये एंगल 1 जो था ये एंगल ऑफ डिप्रेशन था, अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर यहाँ पर है, सपोज ऑब्जर्वर यहाँ है एंड ही इज वाचिंग दिस मैन, देन इन दैट केस ये जो 1 होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो दिस आप देख सकते हो कि यू कैन यहाँ पर रिकॉग्नाइज है ना एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। नाउ वी विल सी द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस वेरी बेसिक वन। Question is a tower is 100√3 meter high. Find the angle of elevation of its top from a point 100 meter away from its foot. You can see here, you can see an object, a tower. तो मैं एक फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट सपोज ए बी that represent the tower, height of the tower, and you can see its height is given 100√3 and find the angle of elevation of its top। यहाँ पर दिया हुआ टॉप का आपको एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। सपोज ए पॉइंट हेयर एट सी which is 100 meter away from the foot of the tower, you can see this is foot of this tower and this is top of this tower, मतलब ये टावर का टॉप है, ये टावर का फुट है।
तो आपको ये एंगल फाइंड करना है। तो हेयर ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट, तो हमें ये एंगल फाइंड करना है। सपोज दिस एंगल इज थीटा। सो आप यहाँ पर सॉल्यूशन जब फाइंड करोगे देन आप सबसे पहले क्या लिखोगे कि लेट ए बी, हाँ, let AB be the height of the tower and C be a point 100 meter away from the foot of tower. So आप देखो आपको क्या फाइंड करना है, we have to find this theta angle of elevation from this point. So आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये राइट एंगल फॉर्म होगा बिकॉज यू नो ये हॉरिजेंटल के साथ तो राइट एंगल फॉर्म करेगा बिकॉज टावर है. So in this triangle ABC and moreover that for this angle C या थीटा एंगल के लिए ये जो होगा ए बी that will be perpendicular. आप इसको याद रखोगे कि for this angle side opposite to the angle known as perpendicular, side opposite to angle this is perpendicular for this angle. ये हमेशा याद रखना है, you already know. और एंगल एंड 90 डिग्री के जस्ट जो अपोजिट साइड होता है डेट इज हाइपोटेनियस, ये आप जानते हो. एंड एंगल के साथ जो एडजेसेंट साइड होता है ये जो बेस, तो परपेंडिकुलर जो होगा एंगल का जस्ट अपोजिट साइड, 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, तो जो रिमेनिंग होगा डेट विल बी बेस. और आपको यहाँ फाइंड करना है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन. आपको ये एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है. यहाँ ए बी भी दिया हुआ है, ए बी का लेंथ ये दिया हुआ है 100√3. सो टू थिंग्स आर गिवन, परपेंडिकुलर फॉर दिस एंगल, इस एंगल के रिस्पेक्ट में इस ट्रायंगल में हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है. तो हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कि tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर और बेस में रेशियो, या cot थीटा भी आप अप्लाई कर सकते हो. तो tan थीटा इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, P/B, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, आप जानते हो परपेंडिकुलर बाय बेस. तो परपेंडिकुलर का मतलब हो गया ए बी और बेस का मतलब हो गया बी सी. सो tan थीटा हो गया ये. सो यहाँ से tan थीटा ए बी का वैल्यू हो गया 100√3 और ये हो गया 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो आपको यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा √3. इसका मतलब है कि tan थीटा और √3 tan का वैल्यू होता है 60 डिग्री. थीटा हो जाएगा 60 डिग्री. तो आप क्या लिखोगे, द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स. ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस. सो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना था. नाउ लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन. This is again related to a tower, but here you can see this is the second type of question. An observer 1.5 meter tall is a 28.5 meter away from a tower. The angle of elevation of the top of the tower from her eyes is 45. What is the height of the tower? So you can see a tower is there. So मैं इससे ही related एक figure यहाँ पर form कर रहा हूँ. Suppose this represents, you can see here tower. AB here length of the tower. Let AB be the length of tower. Now you can see observer height of the observer is given. Suppose CD is the height of the observer. It is given 1.5 meter, and AB height of the this is tower, and it is given tower. Its length is given 28.5 meter. The angle of elevation of the top of the tower from her eyes. तो ये ऑब्जर्वर है, ऑब्वियसली आई, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, यू कैन सी टॉप लिखा हुआ, टॉप ऑफ द टावर. सो दिस इज टॉप, ये टावर हो गया तो ये टावर का टॉप हुआ. सो द एंगल ऑफ एलिवेशन दैट मीन्स दिस एंगल इज गिवन. तो हॉरिजेंटल यहाँ पर हो जाएगा ये हॉरिजेंटल लाइन. सपोज दिस एम, सो दिस एंगल इज गिवन 45 डिग्री हेयर.
45 डिग्री, 45 डिग्री दिया हुआ है ये। देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, तो आपको बताना है ये हाइट ए बी। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर tall is 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए टॉप टावर। यहाँ पर ये हाइट, यहाँ ये डिस्टेंस दिया हुआ है अवे फ्रॉम 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, यहाँ पर ये दिया हुआ है डिस्टेंस। देन आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। सो लेट यहाँ पर कर लो कि ए बी बी द हाइट ऑफ द टावर, लेट ए बी बी द हाइट ऑफ द टावर, let AB be the height of the tower and CD be the height of the observer, height of the observer. Then we have to find here, क्या फाइंड करना है? ए बी फाइंड करना है। तो दिस लेंथ इज 1.5 मीटर, तो ये भी जो लेंथ होगा 1.5 मीटर हो जाएगा। सपोज हाइट जो है ऑब्जर्व, लेट हाइट ऑफ दिस टावर, या आप इस तरह से भी लेट कर सकते हो कि सपोज दिस ये 28.5 है, तो ये भी लेंथ आपका 28.5 मीटर हो जाएगा। सो सपोज दिस लेंथ अगर आप x लेट कर लेते हो, तो लेट कर लो कि am जो है वो है x मीटर। देन इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AMC हम लोग फाइंड कर लेंगे ये फॉर दिस एंगल C के लिए, इस ट्रायंगल में AMC में AM जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और CM जो होगा वो क्या होगा? बेस। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं tan C, मतलब tan C लिख सकते हैं, tan C एंगल के लिए, या 45 भी लिखो, वही C एंगल है। उसके लिए हो गया, इस एंगल का जस्ट अपोजिट जो होगा वो होगा क्या होगा? परपेंडिकुलर। डैट मीन्स AM tan रेशियो देता है परपेंडिकुलर ऑफ बेस का। हम यहाँ पर इसलिए अप्लाई कर रहे हैं tan, क्योंकि हमें ये चाहिए, परपेंडिकुलर का लेंथ चाहिए AM। अगर AM मालूम हो जाएगा तो हम BM में ऐड कर देंगे, देन हमको हाइट आ जाएगा टावर का, AM बाई CM। tan 45 वैल्यू 1 होता है, AM x क्योंकि हमने यहाँ लेट किया है, CM 28.5, देन ऑब्वियसली x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 28.5। बट हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड, यू कैन सी द क्वेश्चन, हाइट ऑफ द टावर। सो हाइट ऑफ द टावर, देयरफॉर द हाइट ऑफ टावर विल बी, हाइट ऑफ क्या है? टावर ए बी। और ए बी को कैसे फाइंड कर सकते हैं? AM में जब हम BM को ऐड कर देंगे, तो AM का लेंथ अभी हमारा आया, डैट मीन्स x 28.5 और BM है 1.5, तो हम जब इनको ऐड करेंगे देन हमें आ जाएगा, ऐड करो आप, तो 819 30 हो जाएगा, 30 मीटर। So 30 meter is the height of the tower. So you can see in this way you can solve the problems of these chapters. So in next video we will see some another important and different types of problems related to heights and distance. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें and press bell icon to get notification for new videos. So again, thank you everyone for watching.